جی، اسم کسی چیز یا شخص یا جگہ یا کوئی صفت یا پھر کوئی کام کا نام ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ جی نسیم اختر، اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی آپ؟ بھائی جان، جو آپ نے ڈیفینیشن بتائی تھی کہ وہ نام کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کام کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب کوئی بھی چیز جو کہ جس سے مطلب ہم اس کو پہچانے، کوئی کام کرنے والا، وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ماریہ قمر؟ صفت کسی بھی چیز کی یا کسی انسان، کوئی بھی جو صفت ہوتی ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے، اور ایسا بالکل مصدر جس میں کوئی زمانہ نہ ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ جی، کام کا نام۔ ٹھیک، شکیلہ اسم یوسف؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ٹیچر، میرا آج پہلا دن ہے کلاس۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہوں آپ کو، بہت بہت ویلکم۔ جزاک۔ اچھا، آپ نے پہلے کہیں پڑھی ہے گرامر اس طرح؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اوکے، تو آپ کو ریکارڈنگز پرووائڈ کی گئی ہیں؟ جی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جہاں سے آپ نے ایڈمیشن لیا ہے ان سے آپ کہیے گا کہ آپ کو 2-3 ہی کلاسز ہوئی ہیں، زیادہ ہوئی نہیں ہے۔ اس میں ہم نے صرف ناؤن کو جی جی دیکھا ہے، اسم کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی ریکارڈنگ ضرور لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی انشاءاللہ جی۔ جی، شہناز خاتون، جی، اسم اور کیا کیا ہو سکتا ہے جتنے ابھی لوگوں نے بتایا، اس کے علاوہ اگر آپ جانتی ہیں تو بتائیں۔ وہ اسما جن پر ال داخل کیا جائے۔ یہ تو یہ اسم کی پہچان ہو گئی نا، کہ ہم پہچانتے کس طرح ہیں اسم۔ اس کے علاوہ کسی جگہ یعنی شہر کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ سب ایک پوائنٹ بھولے ہیں کہ ضمائر کو آپ لوگ بالکل بھول گئے ہیں، کہ ضمائر بھی چاہے وہ پرسنل پروناؤنز ہوں، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز ہوں یا ریلیٹو پروناؤنز ہوں، وہ بھی اسم میں ہی آتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس پرسنل پروناؤنز ہوتے ہیں، جیسے کہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں، اسماء موصولہ ہوتے ہیں، جیسے ہا، ہما، ہم، کا، کما، کم، ہوا، انتا، انتم، یہ ساری چیزیں بھی اسم میں ہی شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ پھر اپنی ساری چیزوں کو ریوائز لازمی کر لیجئے گا۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ ہے جنس، یعنی کہ کسی بھی اسم کا مذکر اور مؤنث ہونا، ٹھیک ہے؟ آج اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس قابل ہوں گے کہ پریکٹس کلاس میں جو ہماری کل ہوگی انشاءاللہ، نہ صرف ہم اسم کو پہچانیں گے بلکہ یہ بھی بتا سکیں گے کہ یہ اسم جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر آپ نے آج اس ٹاپک کو اچھی طرح نہیں سمجھا، نہیں پڑھا، تو جملے بناتے ہوئے ہم کچھ غلطیاں کریں گے، مطلب جملے بن تو جائیں گے لیکن ہم کچھ نہ کچھ مسٹیک کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے آپ سب لوگوں کے مائک آن چاہیے، آپ لوگ سب اپنے مائک کو ان میوٹ کرنا ہے۔ شہناز خاتون مائک کو ان میوٹ کریں، گلشن شجا مائک کو ان میوٹ کریں، آنا آپ مائک ان میوٹ کریں۔ گلشن شجا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ مائک کو ان میوٹ کر دیں آپ لوگ سب۔ جی، اب میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں پوچھوں گی۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ زید مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ کہیں گے تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ زید مذکر ہے۔ اس طرح مریم مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث۔ مونس، ماں، مؤنث۔ باپ، مذکر، مذکر، لڑکا، مذکر۔ مذکر، لڑکی، مؤنث۔ مونس، کرسی۔ کرسی، کرسی۔ اب کچھ خاموشی ہے نا؟
जी, कुर्सी क्या है? कुर्सी मुअन्नस है टीचर। कुर्सी को अच्छा, मुअन्नस कर, हाँ, और स्कूल, उसको मुज़क्कर। मस्जिद, मुज़क्कर। ज़्यादा हम पता नहीं क्या बता रहे हैं। हाँ जिद जी। होती। तो ये अब आप इस चीज को नोटिस करें कि जहां पर रियल मुज़क्कर मुअन्नस की बात कर रही थी मैं, वहां किसी को कोई भी परेशानी नहीं थी, है ना? जी मैंने कुर्सी कहा, आपने सोचा, आपने कहा मुअन्नस। मैंने कहा स्कूल, आपने कहा मुज़क्कर। मैंने कहा मस्जिद, आपने फिर सोचा। ठीक है, तो अरबी जबान में जहां तक रियल मुज़क्कर मुअन्नस होंगे वहां तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है ना? जो बाकी अस्मा होंगे उसमें हम देखेंगे कि कुर्सी अरबी जबान में भी मुअन्नस है या नहीं है। आपकी कुर्सी मुअन्नस क्यों है? क्या इसके लिए कुर्सा टाइप का कोई मुज़क्कर है हमारे पास? नहीं। नहीं। नहीं है ना? तो एक्चुअली कुर्सी मुअन्नस है नहीं, कुर्सी को मुअन्नस हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि अरबी जबान में अहले अरब कुर्सी को मुअन्नस बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। इंशाल्लाह ताला ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है। मस्जिद को उर्दू में हम मुअन्नस बोलते हैं, मुअन्नस ट्रीट करते हैं, मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल खुद मस्जिद मुअन्नस है नहीं। इस तरह अरबी जबान में अरब मस्जिद को मुज़क्कर बोलेंगे या मुअन्नस बोलेंगे, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह स्कूल मुज़क्कर हम बोलते हैं, उर्दू में अल खुद वो मुज़क्कर है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसकी मुअन्नस मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे अस्मा जिनको हम उर्दू में मुअन्नस कहते हैं, दर हकीकत यानी कि हकीकी तौर पे वो कोई मुअन्नस मुज़क्कर नहीं होता है। हम उन वर्ड्स को, हम अहले ज़बान है ना, हमारी उर्दू हमारी ज़बान है, तो हम किसी भी चीज को हम ट्रीट करते हैं कि उसको मुज़क्कर बोला जाए या मुअन्नस बोला जाए। इसी तरह डेफिनेटली अरबी जबान में भी वो लोग भी ट्रीट करते होंगे कुछ चीजों को जो मुज़क्कर है या मुअन्नस। क्योंकि हम अरबी जबान सीख रहे हैं तो हमें अहले अरब को फॉलो करना पड़ेगा। सही। अब जहां तक माँ बाप बीवी शोहर बहन भाई इनका जिक्र होगा, तो जिस तरह उर्दू जबान हो इंग्लिश जबान हो वो मुअन्नस या मुज़क्कर ही होंगे, उसी तरह अरबी जबान में भी होंगे। ठीक है, तो जिन्स किसी भी इसम की हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब वो हम ये सोचें कि क्यों जानना जरूरी है। यहाँ पे स्लाइड शो नहीं हो रही है। मेरी आवाज आ रही है तो तक? जी 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 जी। इसके बाद आज हम देखेंगे कि इसम में अगर हम किसी जिन्स को, उस इसम की जिन्स को ना जाने तो जुमले में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब नसीम अख्तर आप जरा मेरे साथ रहिएगा। जी अब उस्ताजा। अगर नसीम अख्तर मैं ये कहूँ कि मरियम इज माय फ्रेंड, ठीक है, जी ही इज वेरी लॉयल टू मी, तो क्या ये जुमला सही है? नहीं नहीं, क्यों? आपने ही कहा। अब देखिए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे नहीं पता मरियम का जेंडर क्या है। सही। हम्म। अब यहाँ पे गलती की मैंने। जी ठीक है ना, इसी तरह उर्दू जबान में जब मुझे किसी मुज़क्कर या मुअन्नस का नहीं मालूम होगा तो मैं यही गलती उर्दू में भी करूंगी, जी, अरबिक में भी करेंगी, उर्दू में भी। अरेबिक में भी करूंगी। तो अब आप देखें, नोटिस करें कि जेंडर किसी इसम का जानना क्यों जरूरी है। इसम के बारे में चार अहम चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, जिसके बगैर हम उस इसम को तर्जुमे में, उस इसम को जुमले में कभी भी ठीक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसमें से एक चीज आज इंशाल्लाह ताला हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जिन्स। तो ठीक आप है। लोग सब रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, यहाँ तक हम आ गए कि किसी इसम को जुमले में मुकम्मल तौर पर ठीक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसम की जिन्स यानी जेंडर जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिन्स में हमारे पास, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जिन्स में हमारे पास क्या होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। ठीक है, जी हम इस क्लास में आज पढ़ेंगे मुअन्नस को। सही, और पूरी एक पिक्चर बनाएंगे।
मोनस की पूरी एक पिक्चर बनाएंगे और फिर हर इसम को उस मोनस की बनाई गई पिक्चर में फिट करेंगे। अगर तो कोई इसम इस पिक्चर में फिट हो गया तो ठीक है, वरना हम उसको मुज़क्कर के बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है ना, जब दो चीजें होती हैं तो हम किसी एक चीज को पढ़ लेते हैं, अगर वो चीज नहीं होती तो डेफिनेटली दूसरी चीज हो जाएगी। सही है, ये पढ़ने का आसान भी है। उस्ताज़ा क्या कहा आपने कि हम मतलब आज मुज़क्कर को पढ़ेंगे और जो नहीं, चीज़ मुज़क्कर की। मोनस, जी आज हम मोनस को हाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक मोनस है, को पढ़ेंगे, ठीक है। मोनस को पढ़ेंगे तो जो चीज हम देखेंगे कि वो मोनस की हमारी बनाई गई पिक्चर में फिट नहीं होती तो उसको हम मुज़क्कर के बॉक्स में डाल दें। ठीक हो गया। ठीक है, अब सब आप लोग सब अपने माइक ऑफ कर दीजिए। जी, अब हमारे पास है कि जेंडर में यानी कि जेंट्स में कोई भी इसम या तो मुज़क्कर होता है या मोनस होता है। ठीक है, अब मोनस में हम जरा आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास मोनस में एक हकीकी मोनस होता है, यानी कि हकीकत में वो मोनस होता है, और दूसरा होता है गैर हकीकी या लफ्जी। लफ्जी मतलब क्या, उस लफ्ज को हम मोनस ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई भी इसम अगर हकीकी नहीं है, रियल मुज़क्कर मोनस नहीं है, तो वो फिर मुज़क्कर मोनस नहीं होता, बल्कि हम लफ्जन उसको मुज़क्कर या मोनस कहते हैं। ठीक, अब हकीकी से क्या मुराद है? जैसे मैंने बताया था कि माँ, बहन, बेटी, बिल्ली, गाय वगैरह। ठीक है ना, जिसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद है वो आपका हकीकी मोनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास बाप के मुकाबले में माँ मौजूद है, भाई के मुकाबले में बहन मौजूद है, लड़के के मुकाबले में लड़की मौजूद है, मर्द के मुकाबले में औरत मौजूद है, वालिद के मुकाबले में वालदा मौजूद है। ठीक है ना, तो ये सारे हकीकी हुए क्योंकि इनके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं गैर हकीकी की तरफ। गैर हकीकी जैसे इसका बिल्कुल उलट है कि उसका कोई फिल वक्त मुज़क्कर मौजूद नहीं होता। ठीक है, हम उसको लफ्जन मुअन्नस ट्रीट करते हैं। अगर तो कोई इसम हमने सबसे पहले हकीकी में डाला, हमने देखा कि वो इसम हकीकी में है, अगर नहीं है तो हम उसको गैर हकीकी में डालें। फिर हम देखते हैं कि गैर हकीकी की भी हमारे पास दो अकसाम आती हैं। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि गैर हकीकी की हमारे पास दो अकसाम आती हैं। एक होती है अलामती, एक होती है समाई। ठीक है, अब अलामती और समाई ये क्या चीज हो गई? अलामती हम जानते हैं साइन, यानी कि जिसमें कोई ना कोई साइन मौजूद हो कि हाँ अच्छा इसमें ये मौजूद है, तब हमारी ये चीज के इसम मुअन्नस होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है समाई। अब समाई होता क्या है पहले हम ये देखते हैं। समाई वो होता है जिसका ताल्लुक सुनने से होता है, यानी कि वो अस्मा जिसमें कोई अलामत भी ना पाई जाए लेकिन हम उसको मुअन्नस कहेंगे। क्यों? क्योंकि अहले अरब उसको मुअन्नस ट्रीट करते हैं, तो हम उसको मुअन्नस कहेंगे। ठीक है, अब समाई में अगर हम गौर करें तो एक लंबी लिस्ट हमारे पास हो सकती है, यानी कौन कौन से लफ्ज अहले जबान मुअन्नस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम इस तरह देखें तो इतनी लंबी लिस्टिंग है और हमें इस बारे में मालूम भी नहीं। हमारे उलमाए कराम जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई हैं, उन्होंने कुरान से गौर व फिक्र किया, तदब्बर किया, तो उन ठीक है, जब हम उन ग्रुप्स को पढ़ लेंगे ना तो हमारे लिए समाई मोनस को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम अलामती को देखें अगर, तो अलामती में हमारे पास दो तीन अलामत होती हैं, लेकिन हम सिर्फ अलामती में गोल ताको ही पढ़ेंगे। और ये समझें कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, दूसरी अलामत बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए ना फिलहाल हम उसका जिक्र करेंगे और ना उसके बारे में आपको जरूरत है, तो वो इसम मुअन्नस डिक्लेयर होगा उसका माना जाने के बाद। ठीक है, अब हम जिस स्टेज पर हैं हमारे लिए
जरूरी है कि अब हम इसम को मुज़क्कर या मुअन्नस डिक्लेयर करने से पहले उसका माना लाजमी जाने, और ये आगे आने वाली क्लासेस में और बल्कि अभी आगे जब हम प्रैक्टिस देखेंगे तो हम इस बात पे मुत्तफिक, आप भी मुझसे मुत्तफिक होंगी कि वाकई अब हम इस स्टेज पर हैं कि हमें अब इसम का माना देखने की जरूरत है। ठीक है, अब हम आते हैं समाई की तरफ। समाई में हमारे पास कुछ ग्रुप, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया जवाहर था, बोले। हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं। उसमें पहला ग्रुप हमारा है हवाओं के नाम, यानी कि अहले अरब हवाओं के जितने नाम हैं उन सबको मुअन्नस कहते हैं। दूसरा ग्रुप हमारे पास है शराब या फिर शराबों के नाम। ठीक है, तो जितने भी कुरान पाक में शराब या शराबों के नाम आए हैं अहले अरब उनको मुअन्नस ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वो मुअन्नस ही कहलाएंगे। तीसरा ग्रुप आग और आग के नाम, ये भी मुअन्नस होते हैं। चौथा ग्रुप इंसानी ज़ाहिरी आज़ा जो जोड़ों में होते हैं, यानी कि जोड़ों में होने का मतलब दो आंखें, दो कान, दो हाथ, जो भी हमारे जिस्म के ज़ाहिरी आज़ा हैं उनमें जो पेयर हैं वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। पांचवा ग्रुप हमारा है शहरों और मुल्कों के नाम। ठीक है ना, कि पाकिस्तान हो गया, कराची हो गया, ये सारी चीजें जो अहले अरब पाकिस्तान और कराची बोलते हैं ये भी मुअन्नस ही ट्रीट किए जाते हैं। अब कुछ और अस्मा उनको नजर आए जो ना हवाओं के नाम थे, जो ना शराबों के नाम थे, ना आग, ना इंसानी आज़ा, ना शहर, ना मुल्क, कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मुअन्नस ट्रीट हुए, तो उनको मुतफर्रिक अस्मा में डाल दिया गया। मुतफर्रिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें। उसमें हमारे पास अभी फिलहाल जो लिस्ट है वो है सूरज, जमीन, आसमान, दार मतलब है घर, हर्ब मतलब है जंग, नफ्स मतलब है जान। ठीक है, ये सारे जो अस्मा हैं मुतफर्रिक अस्मा की लिस्ट में ये हैं मुअन्नस आपके, क्योंकि अहले अरब उनको मुअन्नस ट्रीट करते हैं। अब आप देखें, हम कहते हैं सूरज निकलता है, लेकिन अहले अरब कहते हैं सूरज निकलती है। ठीक है ना, ये फर्क है। अगर हम ना जाने, हम सूरज को निकालते ही रहेंगे हमेशा, तो हम कभी भी अरबी में सूरज का जेंडर के तौर पर सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये तो मुतफरिक अस्मा जो है ना, ये पूरे कुरान से भी अगर उठाए जाए ना तो मुश्किल से 15 से 16-17 होंगे, बस इससे ज्यादा मुतफरिक अस्मा नहीं। सही, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारे मुतफरिक अस्मा की लिस्ट में भी इजाफा होता जाएगा। फिलहाल के लिए हमने इसको इतना ही रखा है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? कोई पॉइंट जो समझ ना आया हो? गुलशन शुजा। एक्चुअली मेरी तरफ ना नेटवर्क इशू है, तो बीच बीच में ना आपकी आवाज मुझे बहुत ब्रेक होकर सुनाई दी है। बट आई थिंक मैं ये मेरा इंटरनेट इशू है, तो मैं रिकॉर्डिंग से कवर कर लूंगी जो कुछ अगर मुझसे पॉइंट रह भी गया है तो। ठीक है, और रिकॉर्डिंग में भी अगर कुछ ही समझना है तो फिर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकती हैं। ठीक है जजाकल्ला सजा जी, जजाकल्ला। जी, तो यहाँ तक और किसी का कोई अगर सवाल है तो प्लीज करें, अगर कुछ समझ में ना आया तो। गुलशन शुजा, आपका माइक अब ऑन ही नहीं हो रहा। जी, आपको समझ आई है गुलशन शुजा सारी? इनका माइक का प्रॉब्लम है या इनकी तरफ कुछ प्रॉब्लम है? आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, यहाँ तक सबको सब समझ में आया है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। स्लाइड को आगे कर दें प्लीज। ये हमारे पास पूरा टेबल है जो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ा है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वर्ड होंगे आप लोगों के लिए जिसको हम इस पूरे टेबल में फिट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। सही है बाजी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब बेहतर आई है, वरना कब से आपके माइक में से आवाजें आ रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब आ रही है, अब आपको पता चल रहा है? जी जी जी, मुझे पता चल गया। आप ये बताएं कि आपको समझ आई है जो अभी तक हमने बात कही है? बाजी मुझे पता तो चला है, लेकिन मैं जिस्म के अज़ा के बारे में पूछ रही थी को जो सिंगल है वो भी हैं और जो दो दो हैं वो भी हैं। नहीं, सिर्फ दो दो, सिंगल नहीं है। जो दो है ना वही आपके पास मोनस होंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब आप म्यूट ना करिएगा, मैं पहले आपसे ही शुरू करती हूँ। जी उस्ताजा, मेरा एक जी क्वेश्चन है। जी जी। उस्ताजा, ये जो आज़ा हैं, इसके अंदर हमारे जो इंसानी जिस्म के आज़ा हैं, क्योंकि मुझे आवाज़ कुछ ना बीच में स्किप हुई थी, तो जी इसलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ, वो है जैसे अभी सिस्टर ने भी सवाल किया, तो 2 हाथ, 2 आँखें, यही मुराद बिल्कुल, है इसका जो? जुफ्त का मतलब होता है पेयर। जी, जी। ठीक है, तो ये इससे मुराद यही है कि दो आंखें हैं, आपके दो पाँव हैं। ठीक है, जी, जज़ाकल्लाह। और ओके जी। मुतफ़र्रिक़ में बस अभी हम 3 ही चीज़ों को समझें जो आपने बताई हैं अभी। नहीं, तीन नहीं है, छह है मेरे ख्याल से। सूरज है, आसमान है, जमीन है, दार है, नफ्स है, हर्ब है। दार, वो क्या है दार, उस्ताजा? दार मतलब घर होता है। ठीक है, हर्ब ठीक है, मतलब जंग है। दार मतलब घर, घर। ठीक है। दार मतलब घर, हर्ब मतलब जंग। और नफ्स मतलब जान। ठीक है उस्ताजा जी, जज़ाकल्लाह। जी जी जी। गुलशन शुजा, आपके पास वर्ड आ रहा है अभी। देखते हैं आपके पास क्या वर्ड है। ये वर्ड पढ़ें आप। उम उम जी, अब बताएं ये मोन्नस है, मुजक्कर है, और अगर आप उसको मोन्नस कह रही हैं तो क्यों कह रही हैं? माँ को कहते हैं इसलिए मोनस है। कौन सा मोन्नस है? हकीकी। हकीकी मोनस है, माशाल्लाह। आपकी मैं दोबारा बारी भी लूंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि तो बड़ा आसान था। सही, बहुत बहुत जी शुक्रिया गुलशन शुजा। माइक ऑफ कर लीजिए और फिर मैं आपसे दोबारा लेती हूँ। शहनाज खातून, आपका माइक। जी जी, शहनाज खातून, आपके पास वर्ड है, उसको पढ़ें, उसका माना बताएं और फिर बताएं ये मुजक्कर है या मुअन्नस है और क्यों है। उक्तुन उक्तुन मतलब सिस्टर। ये हकीकी मुअन्नस होगी क्योंकि सिस्टर की अपोजिट ब्रदर होती है। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद हम लेते हैं अनाब। जी अनाब। जी, इसका मतलब किताब है। जी, अब ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? अब हम आपको चार्ट दिखाते हैं, हम्म, आप उसमें इसको देखिएगा। सबसे पहले आप हकीकी की तरफ जाएंगी। ठीक है, जी, मुझे लग रहा इसके है ये गैर हकीकी मोनस है। ये गैर हकीकी मुअन्नस है। जी। गैर हकीकी मुअन्नस में ये क्या है? हम्म, ये गैर मुझे हकीकी मुअन्नस में अलामती है, इसके अंदर बोलता है। जी नहीं। अच्छा, बोलता नहीं है तो फिर हम समाई में आ जाते हैं। ठीक है, समाई में किताब क्या हवाओं का नाम है? जी, समाई में भी कोई ग्रुप में इसका नहीं है। ये नहीं फिट हो रहा किसी भी ग्रुप में। और फिर ये मोनस हकीकी होगा। देखिए, हकीकी मुअन्नस वो होता है ना जिसके मुकाबले में मुजक्कर मौजूद हो। तो अगर आप किताब को हकीकी मुअन्नस कह रही हैं तो आपके पास क्या इसका मुजक्कर मौजूद है? जी नहीं। यानी कि हकीकी मुअन्नस वो होते हैं जो एक तरीके से हम कहेंगे जोड़े होते हैं, लाइक बहन, भाई, लड़का, लड़की, मर्द, औरत, माँ, बाप। हकीकी रिश्ते हैं ना ये, एक तरीके से देखा जाए जी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है किताब में। जी हाँ, आपको मेरी आवाज जी। आ रही है? जी।
तो फिर ये गैर हकीकी या लफ्जी मुन्नस होगा। और समाई होगा क्योंकि इसको मुन्नस ट्रीट किया जाता है। इसको मोनस कौन ट्रीट करता है? अहले अरब ट्रीट करते होंगे, इसके मुझे नहीं नहीं ट्रीट कर, पता। देखिए यही तो हमें मालूम करना है ना कि अहले अरब इसको मुज़क्कर ट्रीट करते हैं या मोनस ट्रीट करते हैं। तो जब हमें देखना हो कि अहले अरब किसी इस्म को क्या ट्रीट करते हैं, तो हम इस पिक्चर में घुमाते हैं ना उसको। जैसे हकीकी तो नहीं है, ये सही है, आपको समझ आ गई कि हकीकी क्यों नहीं है। जी अब गैर हकीकी में हमारे पास दो चीजें हैं, अलामती और समाई। समाई ठीक है, अलामती ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके आखिर में गोलता नहीं आ रही। जी अब समाई में हम जाते हैं, समाई में भी हमें ना ये हवाओं के, आग के, शराबों के कोई भी नाम नहीं मिल रहा, मुल्कों शहरों के नाम नहीं है, मुतफरिक अस्मा में भी नहीं है, जिस्म का कोई आज़ा भी जी नहीं है, ठीक है ना। जी तो फिर जब ये मुज़क्कर इस होगा। जब ये पूरी पिक्चर में फिट नहीं बैठता, तो हम इसको फिर मुज़क्कर कंसीडर करेंगे, ठीक है। जी और अहले अरब भी किताब को मुज़क्कर ही ट्रीट करते ओके हैं, ओके ठीक है। क्लियर जी हो गई ये बात यहाँ पर? जी अब भूलेंगी तो नहीं, दोबारा अगर आपकी बारी आई नहीं तो आप कर सकेंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अनाब आपका। जी नसीम अख्तर, आपका माइक कुछ काबिल कबूल हालत में है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपके पास आ गया, कुर्सी आ गई आपके पास। हम्म, कुर्सी आ गई। जी ये कुर्सी आ गई। हकीकी मोनस नहीं है, और गैर हकीकी में अगर कौन हम सी देखें, जी 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 हकीकी मोनस ये है नहीं। और अगर हम इसको बिल्कुल। गैर हकीकी में देखें तो अलामती भी नहीं है और समाई भी नहीं है, तो ये जो है हम्म, वो डेफिनेटली मुजक्कर हो गया। जी फिर हमने इसको मुज़क्कर के बॉक्स में डाल दिया। बहुत खूब माशाल्लाह नसीम अख्तर, बहुत शुक्रिया। जज़ा शहनाज खातून, आपकी बारी हो गई मेरे ख्याल से शायद। जी हो गई। जी 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 ओके, मारिया कमर। जी ये मुज़क्कर है। सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग बताएंगे। ये ज़बान है, एक है ना ये जो ज़बान, जी तो दो जो जूज होते हैं वो मोनस होते हैं, एक जो होगा वो मुज़क्कर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको मुज़क्कर के बॉक्स में डाल देंगे, जबकि हम अगर देखें तो हम इसको मोनस ट्रीट करते हैं, ऐसा ही है ना। जी यानी कि कहता है ना अक्सर खवातीन के लिए कहा जाता है बहुत लंबी जबान है, ठीक है ना। लेकिन अहले अरब जी इसको मुज़क्कर ट्रीट करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कहेंगे लंबा। अब हाँ जी, जी अब अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गए, तो फिर हम गुलशन शुजा को दोबारा लेते हैं। जी गुलशन शुजा। जी बाजी, सबसे पहले तो मैंने एक बात पूछनी थी कि जो अलामती है उसकी अलामत क्या होनी चाहिए? गोलता। गोलता उसकी अलामत है, जहाँ गोलता होगी वो मुन्नस होगा। उसके लिए आपको उस गोलता वाले इसम का मतलब जानना जरूरी है। कि उसका मतलब क्या है, और वो मुन्नस है या मुज़क्कर में जा रहा है, ये यही गोलता तो हमेशा मुअन्नस में जाएगा। बाजी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी, मैं जी गोलता वो हमेशा मुअन्नस ही होता है। वो हमेशा मुअन्नस नहीं होगा, इसके लिए हमें उसका इसम का मतलब जानना जरूरी होगा। इस पर अभी हम बात करते हैं, आप जरा मस्जिद बता दें, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मस्जिद मुज़क्कर है। कैसे आपने कह दिया कि मस्जिद मुज़क्कर है? बाजी ये
क्योंकि ये क्या बताऊँ अब, वो मैं मुअन्नस गैर हकीकी होता है और लफ्जी होता है। ये अलामती में भी नहीं है और समाई में भी नहीं, समाई में है नहीं, समाई में भी नहीं है जी, ना, तो ये ना ये हकीकी है ना ये गैर हकीकी में अलामती। अलामती है और ना समाई है। जी, तो इस वजह से ये वजह मुज़क्कर से ये ट्रीट होगा। मुज़क्कर। जी जी, अपना माइक ऑफ कर लें। जी, अब ये सवाल हो रहा है कि हर वो इसम जो गोल ता पर एंड होगा, क्या हम उसको मोनस मानेंगे? तो अगर कुछ पिछली क्लासेस में किसी ने कहा था कि जी गोलता है मोनस की अलामत है, तो मैंने उससे ये सवाल किया था कि अगर उसामा होगा तो क्या वो भी तो गोलता पे एंड है, तो क्या वो मोनस होगा? तो उस पर खामोशी थी किसी की। किसने ये किया था, ये किससे बात हुई थी मुझे याद नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छी तरह नोट कर लें कि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि अब हमें जरूरत है कि हम ये देखें कि उस इस्म का माना क्या है, ठीक है ना। तो माना इसीलिए कहा था क्योंकि हर वो इस्म जो गोलता पे एंड हो वो मुअन्नस कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर तो वो मुजक्कर ने अपनाया है। स्पेशली नामों पर मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे पास उसामा नाम है, सही, और हम जानते हैं कि ये गोलता पे जरूर खत्म हो रहा है लेकिन ये किसी मर्द का नाम है, तो फिर हम इसको मुअन्नस ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैं ये देखूं कि उसामा किसी लड़की ने अपना नाम रख लिया है तो फिर मैं उसको मुअन्नस ट्रीट करूंगी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि अगर किसी इस्म के बारे में आप ये कंफर्म है कि ये किसी मुअन्नस ने अपनाया है, चाहे वो मुजक्कर नाम ही क्यों ना हो, तो फिर हम उसको मुअन्नस ट्रीट करेंगे। यानी कि अब यहाँ पे लिहाज रखा जाएगा कि ये नाम मंसूब किससे है, उसको अपनाया किसने है। अब मैंने देखा था कि शमीम हमारे जहन में आता है मुजक्कर का नाम, लेकिन शमीम मुअन्नस का नाम भी होता है। तो हम इसके नाम की बिना पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं जी शमीम बेशक किसी लड़की का नाम है लेकिन हम तो इसको मुजक्कर ही ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं है। हम शमीम को आता कभी नहीं कहेंगे कि शमीम आता है, ठीक है ना, हम आती ही कहेंगे। इस तरह सर आमिर से साहब के लेक्चर में ये बात थी कि अख्तर एक इनके नेबर्स में होते थे अख्तर, उसमें एक औरत का नाम था, सही है ना। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अख्तर भाईजान कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि ये जो मुजक्कर नाम है ये किसी मुअन्नस ने अपनाया है। तो जैसे ही हमें ये इल्म होता है कि किसी मुअन्नस ने अपनाया है तो फिर हम उसको मुअन्नस ही ट्रीट करेंगे। यहाँ तक की बात समझ आई है? जी मैम। अच्छा, यहाँ पर जो एक नई हमारे साथ थी, क्या वो मौजूद हैं? जी टीचर। जी, शायद मेरे ख्याल से आपने अपना नाम चेंज किया। जी हाँ, वो मैंने जो है एडमिशन जिस नाम से लिया वही रखा था। अच्छा अच्छा, बिंदे यूसुफ आपकी टर्न हो गई थी? नहीं जी, मेरे पास नेटवर्क चला गया था। ओके ओके, अब आपके पास है मदरसा। जी जी। तो आप इसको क्या कहेंगी कि ये मुअन्नस है या मुजक्कर है? अलामती हिसाब से तो ये मुअन्नस हुआ। यानी कि अच्छा, अगर आप लोग इसको इस तरह पहचानेंगे ना कि ये हकीकी हो नहीं सकता, गैर हकीकी में ये अलामती के दायरे में आ रहा है, तो इससे क्या होगा, ये बोल बोल कर आप लोगों का वो टेबल जो है ना, फिर आपको टेबल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि पूरा लाइन वाइज अगर आप बोलेंगी ना तो आपके जहन में ये पिक्चर खुद ही फिक्स हो जाएगी, सही। तो आप ये कह सकती हैं कि ये गैर हकीकी में जो अलामती हमने पढ़ा है जिसकी अलामत बोलता है, ये इस बॉक्स में फिट होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक है। आपके जी सामने इस वक्त चार्ट मौजूद है, सही। जी। तो अगर आप इस तरह कहेंगी ना तो आपके जहन में ये पिक्चर जो इस वक्त आपके सामने है आपके जहन में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने देखा मदरसा। मदरसा हमें पता है उसका माना क्या है, ठीक है।
تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ یہ کسی مذکر نے اپنایا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کو کہیں گے کہ گول تا کی وجہ سے، جو کہ غیر حقیقی میں علامتی مونس کہلاتا ہے، یہ مونس ڈکلیئر ہوگا. جی ٹھیک ہے جی. بنت یوسف، آپ کو آج کی کلاس سمجھ آئی ہے ساری؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ، ماشاء اللہ. اچھا، ایک اور تھی جن کے پاس اخت آیا تھا، جی وہ میرے کون پاس تھی؟ شہناز خاتون. جی مجھے آئیڈیا تھا. جی اب دیکھتے ہیں آپ کے پاس کون سا ورڈ آتا ہے. جی شہناز خاتون، آپ کے پاس یہ ورڈ آیا ہے، پہلے آپ اس کو پڑھیں اور اس کا معنی بتائیں. مجھے آ گیا ید. جی ید مطلب ہینڈ ہوگی شاید. ایگزیکٹلی. اب آپ کے سامنے وہ پکچر ہم لے کر آئیں یا آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مؤنث ہوگی کیونکہ جوڑوں میں آتی ہے ہینڈ. بالکل، کیونکہ انسان کے جو پارٹس ہیں، جو ویزیبل پارٹس ہیں، وہ اس میں جو پیر ہیں یہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. جی جی تو اس وجہ سے ہم اس کو مؤنث کہیں گے، کیونکہ اہل عرب بھی اس کو مؤنث ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے ید؟ ہاتھ. اچھا، ہم اس کو عربی میں پڑھتے ہیں نا یدئی یدئی. ہاں، وہ ہم مضاف کے طور پر پڑھتے ہیں. ہو گیا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اب ہیں ہمارے پاس آنا، اب آپ دوبارہ آ جائیں. انف، مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. ناک. ناک مطلب ہے؟ نوز. اچھا، تو جی پھر یہ مذکر ہے کیونکہ یہ حقیقی مونس نہیں ہے، اور غیر حقیقی میں نہ علامتی ہے اور نہ سمائی ہے. لیکن یہ انسانی اعضاء میں تو شامل ہے نا. جی، پیر نہیں ہے. پیر نہیں ہے، یعنی کہ 2 ناکیں ہوتی تو پھر ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. جی جی اب یہ ایک ناک ہے تو یہ مذکر کے باکس میں مذکر. جائے گی. جی اناب، اسٹارٹ میں بھی آپ نے ہی کیا تھا غالباً. آپ کیا؟ سے ہی میں نے کہا تھا میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گی، اب آپ کر پائیں گی یا نہیں. آپ ہی تھے وہ؟ جذباتی جی ہونا ختم نہ کریں. کیوں جذباتی جی، ہو مجھ رہی سے ہے؟ کتاب پوچھا تھا. جی بنت یوسف، آپ چلو کچھ گو کہنا چاہ رہی ہے. بنت یوسف، آپ اپنا مائک آف کر دیں اگر آپ نے کچھ نہیں پوچھنا. جی یہاں تک سب کی پریکٹسز ہو گئی ہیں الحمدللہ. کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی الجھن ہے تو وہ بتائیں. الحمدللہ استاذہ، جی جی. ہر کلاس میں جو بھی آپ سمجھاتی ہیں اللہ کے توفیق سے وہ سمجھ آ جاتا ہے. الحمدللہ. بس یہ کہ اس کو ریویژن میں رکھیں. آپ لوگ کا ایک مذاکرہ گروپ بنایا گیا ہے شاید، لیکن اس میں ماشاءاللہ ساری خواتین ہونے کے باوجود بہت خاموشی ہے، جو کہ ایک حیرت انگیز بات ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اس میں جب آپ انشاءاللہ تعالی الحمدللہ ایسا ہے کہ آپ لوگ ڈیلی قرآن ریسائٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، تو ابھی تک ہم نے جو اسما پڑھے، جو ہم نے پہچان پڑھی، جس کو ہم نے اسم کہا، اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے ڈیورنگ ریسائٹیشن تو آپ لوگ اس کو پکچر لے کے آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں کہ آج میں نے اس میں سے یہ چیز ڈھونڈی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن میں رہیں گے ایک دوسرے سے تو سب کے لیے آسانی ہوگی. بیچ میں ایک ہفتہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں کہ اس میں تھوڑا بہت اس مذاکرہ گروپ میں اپنا پارٹیسپیٹ کریں. اس میں چیزیں جو آپ نے پڑھی، جو آپ کو سمجھ آئیں، وہ چیزیں ڈالیں تاکہ جو ابھی نئے ہمارے آ بھی رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کی نشاندہی ہم آرام سے کر سکتے ہیں. صحیح ہے جی. ماریہ قمر، آپ کا کوئی سوال؟ جی میم.
میم جیسے آپ جی نے ابھی کہا نا کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ علم ہو کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ مرد ہے، تو چاہے وہ ہمیں لگ رہا ہو کہ مذکر ہے تو مونس ہے، ہاں ہاں سوری مونس ہے، لیکن وہ پھر بھی ہم اس کو مذکر ٹریٹ کریں گے. تو اسی بالکل طرح ایسا ہی. جیسے ایک لفظ ہے خلیفتن، تو جیسے ہوں، خلیفہ ہوتا ہے تو وہ بھی بالکل. ہم اسی لیے کیونکہ خلیفہ کے جی پیچھے جی مرد ہوتے ہیں. بالکل. اب دیکھیں علامہ ہے نا، جی ٹھیک ہے. علامہ بھی اس میں سے ایک ورڈ ہے نا. جی ٹھیک ہو تو گیا. پھر صحیح ہے نا. اب سمجھ آ گئی کہ ہمیں معنی جاننا کیوں ضروری ہے. جی اب اگر ہم خلیفہ کا معنی نہ جانتے، علامہ کا معنی نہ جانتے، تو ہم اس کو ڈائریکٹ بغیر سوچے سمجھے مونس کی کیٹیگری علامتی مونس میں ڈال دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. جی جی لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم معنی جانیں اسم کا. ٹھیک ٹھیک ہو ہے گیا. جی. اچھا آگے چلتے ہیں. آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ گول تا اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے یہ گول تا. ٹھیک. اب یہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ کسی بھی مذکر اسم کو آپ کو مؤنث بنانا ہو تو آپ اس کے آخر میں گولتا لگاتے ہیں. اور جس طرح میں نے ایک پوائنٹ آپ کو بتایا تھا کہ گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا. گول تا سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ہمیشہ زبر پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی میرے خیال سے. جی شہناز خاتون، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لیو کر سکتی ہیں، لیکن ریکارڈنگ ضرور سن لیجیے گا. بالکل اینڈ ہی ابھی چل رہا ہے تو اس اینڈ کی ریکارڈنگ ضرور سن لیجیے گا. جی اس کو آگے چلائیں ان ورڈز کو، اور گولتا کی اہمیت والی سلائڈ پر ہم آتے ہیں. کسی بھی مونس اسم سے مراد مذکر اسم سے میری مراد حقیقی مذکر قطعی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حقیقی مذکر کبھی بھی مونس نہیں بن سکتا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے کہا تھا کہ جو صفات ہوتی ہیں، صفت ہوتی ہے، وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. تو جتنی صفات ہمارے سامنے آتی ہیں، صحیح ہے نا، تو اس کو اگر ہم مذکر وہ ہوں، اس کو ہم مؤنث بنانا چاہیں تو ہم گول تا کا اضافہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر لے کر آتے ہیں. سلائڈ آگے نہیں بڑھ رہی، یا پھر شاید میرے نیٹ کا ایشو ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم آ رہی ہے. جی جی آگے اس کو چلائیں. جی اب یہاں پر دیکھیں یہ سارے الفاظ ہیں. صحیح. اناب اگر آپ یہاں پر ہیں ہمارے ساتھ تو اپنا مائک آن کریں. جی. اسٹارٹ کے 3 ورڈز آپ پڑھیں اور ان کو مؤنث بنائیں. استاذ، استاذہ، ہوں معلم، معلمہ، مؤمن، مؤمنہ. جی ماشاء اللہ. گلشن شجاع. گلشن شجاع آپ کا مائک. جی گلشن شجاع آپ کا مائک. خالد، خالدہ، شاہد، شاہدہ، طالب، طالبہ. بالکل. اب مائک آف کر دیں اپنا. جی بنتے یوسف آپ نے کوئی بات کہنی ہے؟ آپ کا مائک آن ہے. جی نہیں ٹیچر وہ غلطی سے آن ہے. جی تو یہاں تک آپ نے یہ دیکھا، آپ کو سب سمجھ آیا کہ کسی بھی مذکر اسم، جو مذکر اسم ٹریٹ کیا جاتا ہے صفات کے لحاظ سے، پیشی کے لحاظ سے. کیونکہ دیکھیں آپ کا معلم بھی ایک آپ کی صفت ایک طریقے سے کسی انسان کی، ٹھیک ہے، کہ وہ ٹیچر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو معلمہ ہم کر دیں گے. پر کسی بھی اسم، مذکر اسم کو صفات پر مبنی ہو، اس کو اگر ہمیں مؤنث بنانا ہے تو یہ گول تا ہی ہمارے پاس ایک واحد ٹول ہے جس کی وجہ سے ہم کسی مذکر اسم کو مؤنث میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں تک سب کو آج سب کا کلیئر ہے؟ آپ لوگ 5 منٹ ہیں، اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی کیوری ہو، کوئی پریویس کوئی ایسی چیز ہو
جو ریویژن کرتے وقت آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو. جی الحمدللہ. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک سجیشن جو آپ دینا چاہیں وہ اپنے گروپ میں ضرور دیں. لائک جی گلشن شجا صاحبہ. اچھا ٹھیک ہے, اپنا فیڈ بیک سجیشن جو بھی ہو آپ لوگ لازمی دیں تاکہ مزید بہتر سے بہتر چیز بنائی جا سکے. جی گلشن شجا. وہ ایگزیکٹلی تو میں نوٹ نہیں کر سکی, وہ جب ریکارڈنگ ملے گی تو اسے نوٹ کر کے تو پھر میں اپنے مائنڈ میں انہیں فٹ کروں گی. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ کچھ پوائنٹس جو آپ نوٹ کر سکتی ہیں, کچھ پوائنٹ. گلشن شجا آپ نے مائک آف کر دیجیے, بہت شور ہے آپ کے مائک میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ فی الوقت نوٹ کرنا چاہیں, بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس, ان کو نوٹ کریں. ادروائز اپنا پورا فوکس کلاس کے اوپر رکھیں کیونکہ ریکارڈنگ آپ کو مل جانی ہے, ٹھیک ہے نا. جب ریکارڈنگ ملتی ہے پھر آپ اپنے نوٹس وہاں سے بنا سکتی ہیں, آپ کے سلائیڈز بھی آپ کے سامنے ہوں گی, آپ اس کو ٹیبل فارم میں اسی طرح آپ کی کاپی پہ بھی لکھ سکتی ہیں, سب کچھ کر سکتی ہیں. لیکن جب ہم لکھتے بھی ساتھ ہیں اور سنتے بھی ساتھ ہیں نا تو تھوڑا سا فوکس ہمارا شیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جی شہناز خاتون. استاذہ یہ کتاب میں اگر گولتا لگا دوں تو کیا وہ بھی مؤنث ہو جائے گی؟ کتاب تو ایک چیز ہے نا, میں نے صفات کی بات کی ہے. مطلب چیز میں کبھی بھی گولتا لگانے سے وہ مؤنث میں نہیں آئے گی. لیکن ہم گولتا کیوں لگائیں گے؟ دیکھیں نا, آپ کے پاس ایک میل ٹیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جی ایک فیمیل ٹیچر ہوتی ہے نا, جی ٹھیک ہے نا. لیکن کتاب تو سب کے پاس کتاب ہی ہوتی ہے نا, اس کو ہمیں کیا ضرورت ہے گولتا بنا کے مؤنث بنانے کی, پہلے یہ بتائیں. جی صحیح. ٹھیک ہے نا, مطلب ہم کیوں ایسا کریں گے کہ ہم اس کو گولتا بنا کے, اب ہم جب کتاب جو آپ جملے میں استعمال کریں گے تو مذکر ہی استعمال کریں گے نا, صحیح جی ہے نا. اب لیکن جب آپ معلم کی بات کریں گے اور اگر وہ ٹیچر ہوں گے تو آپ معلم تو یوز نہیں کریں گے نا, پھر آپ کو معلمہ یوز کرنا پڑے گا نا. جی تو اس کو پھر آپ کو گولتا میں چینج کرنا پڑے گا, یہ آپ کی مجبوری ہے. لیکن کتاب کو گولتا میں لانے کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے. جی. اور ایک بات, مطلب یہ سارے جو نان لیونگ تھنگس ہے, مطلب کرسی ہو یا جو بھی ہو جی جی نان لیونگ جی تھنگ, جی جی جی. تو اس کو مطلب مذکر مؤنث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب جیسے انگلش میں ہوتے اس میں کوئی مطلب مذکر مؤنث ایسا کچھ نہیں ہوتا, ویسے ہی بھی رکھ سکتے تھے. مذکر مؤنث کے لیے وہاں پہ جو بے جان چیزیں اٹ کا یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جی اگر مجھے نہیں پتا ہو کہ اٹ کا یوز ہوتا ہے تو میں اس کی انگلش میں کرسی کو ہر بول سکتی ہوں نا. جی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کرسی کا جینڈر کیا ہے کہ مجھے اس کو اٹ بولنا ہے. جی اب اگر آپ یہ جینڈر نہیں سمجھیں گی, صحیح ہے, تو جی آپ یہ کہیں گے کہ مریم آتا ہے, تو یہ صحیح بات ہوگی مریم کے لیے؟ نہیں. صحیح ہے نا. تو یہی بات ہے کہ اب آپ کہیں گی کتاب میز پر پڑی ہے, صحیح. لیکن جب عربی میں کتاب میز پر پڑی ہے آپ نہیں کہہ سکتی, کتاب میز پر پڑا ہے کہیں گی, کیونکہ اہل عرب کتاب کو مذکر ٹریٹ کرتا ہے. تو آپ کے جملوں میں آپ بہت غلطیاں کریں گی, اور جب آپ اپنے جملوں میں اس جینڈر کو نہیں پہچانیں گے تو آپ قرآن میں بھی نہیں پہچان سکتے کہ کتاب کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوئی ہے, کتاب کے لیے کون سی ایسی چیز استعمال ہوئی ہے جو اس کو مذکر کہلائے گی, جو جس کی وجہ سے وہ مذکر کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. جی تو ہمیں یہ اسم کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. جی ٹھیک ہے, سمجھ گئی آپ کا الحمدللہ. سوال میں سمجھ گئی ہوں, صحیح. ہاں کیونکہ ہماری بنگالی میں بھی مطلب ایسا کچھ نہیں ہوتا, مطلب مذکر مؤنث ایسا کچھ نہیں ہوتا. کہاں پر نہیں ہوتا؟ ہماری زبان مطلب بنگالی میں. اوکے, یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ایسا ہی ہے. مطلب آپ پینسل ہیں, پینسل کو آپ کیا بولیں گی, مذکر یا مؤنث؟
ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो बस नॉन लिविंग थिंग्स है, इसका लिए मतलब मुअन्नस मुजक्कर कुछ भी नहीं है। गौर कीजिएगा आज से, जी क्योंकि देखिए ना, जब आप इसको इस्तेमाल करती होंगी जुमलों में, तो मुमकिन नहीं है ना कि किसी को आप मुजक्कर बोलें या किसी को मुअन्नस बोलें। देखिए वो अस खुद मुजक्कर मुअन्नस होता नहीं है, किताब खुद एक मुजक्कर है नहीं, हम उसको मुजक्कर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना? जी सही है ना? अब आप कहते हैं ना पेन के बारे में कहती हैं कलम, जी तो उसको ये आप, अच्छा ठीक है, आपके पास कलम है, कलम तो आप समझ रहे हो ना? आपकी जबान में अगर जी मैं कहूँ कि दिस कलम दिस पेन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आप इसको अपने जबान में कैसे बोलेंगी? एक कलमটা খুব সুন্দর। अच्छा, आप इसका उर्दू बताइए। ये पेन बहुत खूबसूरत है। अच्छा है, अगर आपको अच्छा बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे ना, कलम अच्छा है। जी तो अच्छा है आप बोलेंगी तो भी आप अपनी जबान में वैसे ही बोलेंगे, और अगर आप कहेंगे कलम अच्छी है तो भी वैसे ही बोलेंगी। जी अच्छा, अच्छा और अच्छी दोनों सेम है आपकी जबान में? हाँ अच्छा, फिर ठीक है, फिर मेरे ख्याल से फिर शायद ये थोड़ा सा कुछ हो इस तरह। बाकी वैसे आपको समझ आ गई कि क्यों हम जानते हैं जेंडर को, जी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? अब मैं कलम को कहूंगी कलम बहुत अच्छा है तो सब कहेंगे हाँ ठीक है। अब मैं कहूंगी कलम बहुत अच्छी है तो सब मुझे घूर के देखेंगे ना कि कलम अच्छी कैसे हो सकती है। जी तो इस वजह से मैं ये मिस्टेक्स करूंगी अगर मुझे ये ना पता हो कि उर्दू में कलम को मुजक्कर बोला जाता है, ठीक है? हाँ मुझसे भी यही मिस्टेक ही होती है जब भी उर्दू बोलती हूँ। हाँ तो ठीक है, इंशाल्लाह अब नहीं हुआ करेगी। अब जी इंशाल्लाह ताला आप थोड़ा सा उर्दू बोलेंगे हमारे साथ तो आपको आइडिया हो जाएगा, जी इंशाल्लाह। ठीक है? चलिए जी, जी फिर इंशाल्लाह ताला क्लास का एंड करते हैं इस दुआ के साथ, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।